لے جائیں گے دل والے دلہنیاں لے جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کتاب کہانی میں آپ کو خوش آمدید۔ آواز کنزا کی ہے۔ فنکشن میں میری کزن رباب کی سہیلیوں کی دھوم مچی ہوئی تھی۔ وہ سب ڈول پیٹ کر الٹے سیدھے گانے گا رہی تھیں اور میں نیچے کے پورشن میں جلی بھنی بیٹھی معاشیات کا رونا رو رہی تھی، کیونکہ اگلی ہی صبح میرا فائنل پیپر تھا۔ جیسے ہی میں نے اپنی امی کو باورچی خانے میں جاتے دیکھا، میں نے جلدی سے کتاب بند کی اور کرسی سے کھڑی ہونے ہی لگی تھی کہ پیچھے سے امی کی سخت آواز آئی، ہانیہ، میں تمہیں دیکھ رہی ہوں، خبردار جو تم اوپر گئی۔ میں مرتی کیا نہ کرتی والا چہرہ بنا کر، امی پلیز بس 1 گھنٹے کی چھٹی دے دے، 1 گھنٹے بعد ویسے بھی سب لڑکیاں اپنے اپنے گھر چلی جائیں گی۔ کاش کوئی انسان کبھی کسی ٹیچر کی اولاد نہ ہو۔ میری والدہ گورنمنٹ کالج کی پروفیسرہ تھی اور انہیں بس 24 گھنٹے میری پڑھائی کی فکر رہتی تھی۔ گھر میں تایا زاد بہن کی شادی کی ڈھولکی ہو رہی تھی اور میں یہاں معاشیات میں اپنا سر کھپا رہی تھی اور میری امی کسی استانی کی طرح مجھ پر کڑی نظر رکھے ہوئے تھی۔ کہنے لگی، پچھلے 2 گھنٹے سے تم نے ایک سوال یاد نہیں کیا۔ کب سے کہہ رہی ہوں کہ یہ آخری چیپٹر یاد کر لو اور پھر چلی جانا۔ جب میری منت سماجت کام نہ آئی تو ٹھیک رات کے 9 بجے دروازے پہ دستک ہوئی۔ میں جانتی تھی اس وقت کون آ سکتا ہے۔ میں نے کتاب چھوڑی اور دوڑ لگاتے ہوئے مین گیٹ کھول دیا۔ سامنے کھڑے تھے میرے تایا زاد بھائی۔ ان کو دیکھتے ہی میری آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو آ گئے۔ انہوں نے مجھے دیکھ کے پوچھا، کیا ہوا؟ میں نے رونے والی شکل بنا کر امی کی طرف اشارہ کیا۔ وہ ہمیشہ کی طرح میرا اشارہ فوراً سمجھ گئے اور مسکرا کر بولے، میں آ گیا ہوں نا، سب سنبھال لوں گا، فکر مت کرو۔ فخر بھائی کے ہوتے ہوئے میں نے کبھی زندگی میں کوئی ٹینشن لی ہی نہیں تھی۔ وہ امی کے پاس گئے تو امی پہلے ہی بول پڑی، فخر، خبردار جو تم نے اس کی طرفداری کی، یہ جب تک یاد نہیں کرے گی کہیں نہیں جائے گی۔ لیکن فخر بھائی نے اپنے مخصوص لاڈلے انداز میں کہا، چچی دیکھے تو بچی کا کتنا سا منہ نکل آیا ہے، جانے دینا، تھوڑی دیر میں ڈھولکی بند ہو جائے گی تو یہ خود ہی آ کر پڑھ لے گی۔ اگر نہیں بھی یاد ہوا تو کوئی بات نہیں، سپلی دے دے گی۔ اب شادی روز روز تھوڑی آتی ہے، پیپرز تو انسان دوبارہ بھی دے سکتا ہے۔ امی نے گھور کر کہا، تمہاری وجہ سے نا یہ بہت سر چڑھ گئی ہے۔ آخرکار فخر بھائی نے امی سے وعدہ کیا کہ وہ خود رات کو جاگ کر مجھے پورا چیپٹر یاد کروا دیں گے۔ تب کہیں جا کر مجھے اوپر جانے کی اجازت ملی۔ ہمارا خاندان ایک مڈل کلاس اور روایتی خاندان تھا۔ ایک عام سے محلے میں ہمارا 2 منزل کا مکان تھا۔ نیچے کے پورشن میں میں اور میری امی رہتے تھے، جبکہ اوپر کے پورشن میں تایا ابا کی فیملی رہتی تھی۔ میرے والد کا انتقال اس وقت ہوا تھا جب میں 7ویں جماعت میں تھی۔ میں اپنے والد کی اکلوتی بیٹی تھی۔ تایا ابا نے مجھے کبھی والد کی کمی محسوس نہیں ہونے دی تھی، لیکن افسوس کہ 3 سال پہلے ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ تایا ابا کے 4 بچوں میں فخر بھائی سب سے بڑے تھے، ان کے بعد رباب، پھر فضا اور سب سے چھوٹا ارحم تھا۔ فخر بھائی گھر میں سب سے بڑے ہونے کے باوجود بہت ذمہ دار تھے، جبکہ ارحم مجھ سے 2 سال بڑا تھا اور الہر مزاج تھا۔ فخر بھائی جب بھی میرے لیے کوئی چیز لاتے تو ارحم مجھ سے لڑنے لگتا کہ آپ میرے بھائی ہیں اس کے نہیں، لیکن فخر بھائی ہمیشہ میرا ساتھ دیتے اور ارحم کو ڈانٹ پڑتی۔ محلے میں یا کالج میں مجھے کوئی بھی مسئلہ ہوتا تو میرا ایک ہی جواب ہوتا تھا، میں ابھی فخر بھائی کو بلا کر لاتی ہوں، وہ تمہارا منہ توڑ دیں گے۔
जब मैं कॉलेज पहुंची तो मेरी सहेलियां अक्सर फखर भाई को देखकर कहती, हानिया तुम्हारा कजन तो बहुत हैंडसम है। अगर ऐसा कजन हो तो इंसान घर में ही सेटिंग कर लेता है। मैं इनसे लड़ती, वो मेरे भाई जैसे हैं। लेकिन सच तो ये था कि आहिस्ता आहिस्ता मेरे दिल में फहर भाई के लिए कजन और भाई से भरकर एक अलग ही एहसास जगने लगा था। वो जिस तरह मेरा ख्याल रखते, मेरी पसंद नापसंद का ध्यान रखते, मैं इनकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुकी थी। मगर होश तो मेरे इस वक्त उड़े जब एक दिन फखर भाई के घर में ये खबर सुनाई कि इन्हें बैरून मुल्क लंदन में एक बहुत अच्छी जॉब मिल गई है और वो पूरे 3 साल के लिए जा रहे हैं। ताया अब्बा के इंतकाल के बाद पूरे घर की जिम्मेदारी फखर भाई के कंधों पर आ गई थी। उन्होंने ताया अब्बा की दुकान बेचकर रुबाब की शादी कर दी थी। अब फिजा की शादी और अरहम की पढ़ाई के लिए इन्हें पैसों की सख्त जरूरत थी। जब मुझे पता चला कि इनके अगले ही दिन की फ्लाइट है तो मेरा दिमाग घूम गया। मैं सीधी इनके कमरे में गई ऊपर, जहां वो अपनी पैकिंग कर रहे थे। मुझे रोता देखकर वो बोले, मेरी गुड़िया क्यों रो रही है? वहां से अच्छी अच्छी चीजें भेजूंगा तुम्हारे लिए। मैंने तड़प कर कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए फहर भाई, मुझे बस आप चाहिए। आप कहीं नहीं जाएंगे, मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। और ये कहते ही मैं बेसाख्ता इनके गले लगकर रोने लगी। मेरे इस तरह गले लगने पर इन्हें जैसे कोई करंट लगा हो। उन्होंने फौरन मेरा बाजू पकड़कर मुझे खुद से दूर किया और सख्त लहजे में कहा, हानिया क्या हो गया है तुम्हें? मैं इस वक्त अपने जज्बात पर काबू खो चुकी थी। मैंने रोते हुए कह दिया, मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ फहर भाई, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। मैं आपको किसी और का होते नहीं देख सकती। मेरे मुंह से ये लफ्ज निकलने की ही देर थी कि एक जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर पड़ा। मेरे 14 तबक रोशन हो गए। फखर भाई गुस्से से कांप रहे थे। शर्म नहीं आती तुम्हें ये बात करते हुए? मैं तुम्हें हमेशा छोटी बहन समझता रहा, गुड़िया कहता रहा, और तुम मेरे बारे में ऐसी घटिया सोच रखती हो? दफा हो जाओ यहाँ से, और खबरदार जो आज के बाद मुझे अपनी शक्ल दिखाई या मेरे सामने आई। मैं रोती हुई अपने कमरे में भागी और दरवाजा बंद कर लिया। अगले दिन फखर भाई लंदन रवाना हो गए। पूरा घर इन्हें अलविदा कहने स्टेशन गया, लेकिन मैं अपने कमरे से बाहर नहीं निकली। अम्मी ने समझा कि शायद मैं इनके जाने पर नाराज हूँ, लेकिन असल हकीकत मेरे और फखर भाई के दरमियान थी। उस दिन मेरे रुखसार पर पड़ने वाले थप्पड़ ने मेरे दिल पर ऐसी चोट कि मेरी जिंदगी की सारी मासूमियत और लाबालीपन खत्म हो गया। मैंने फखर भाई की मोहब्बत को अपने दिल में दफन करके इसे नफरत और अना का नाम दे दिया और खुद को मुकम्मल तौर पर पढ़ाई में मसरूफ कर लिया। 3 साल का अरसा बीत गया। इस दौरान मैंने इंटर और बीकॉम मुकम्मल किया और आईटी का कोर्स भी कर लिया। फखर भाई लंदन से हर महीने अम्मी के अकाउंट में मेरे जहेज के लिए पैसे भेजते थे, लेकिन मैंने अम्मी से साफ कह दिया कि मुझे इनका कोई एहसान नहीं चाहिए। मैंने एक डायरी बना रखी थी जिसमें बचपन से लेकर अब तक फखर भाई के मेरे ऊपर खर्च किए गए एक एक पैसे का हिसाब लिखा था। मुझे इनकी पाई पाई लुटानी थी ताकि इनका ये गरूर तोड़ सकूं कि इन्होंने मुझ पर कोई एहसान नहीं किया। मैंने एक कंपनी में जॉब शुरू कर दी। अगरचे मेरी अम्मी और ताई अम्मी इसके खिलाफ थी, लेकिन मैं अपनी जिद पर अड़ी रही। और फिर पूरे 3 साल बाद वो दिन भी आ गया जब फखर भाई लंदन से वापस लौट आए। जब मैं एक दिन ऑफिस से घर पहुंची तो लाउंज में बड़े बड़े अटैची केस रखे थे और सामने फखर भाई बैठे थे। 3 साल में इनकी शख्सियत पहले से कई ज्यादा पुरकशिश
और निखर चुकी थी। इन्होंने एक नजर मुझे देखा, हमारी नजरों का तसादुम हुआ, लेकिन मैंने सरसरी नजरों से इन्हें नजरअंदाज कर दिया। बस एक उखड़ा हुआ सलाम किया और सीधी अपने कमरे में चली गई। अगले ही दिन मैंने अपने बैंक अकाउंट से अपनी जमा पूंजी निकाली। मैंने वो 70,000 रुपये नकद और फखर भाई का लाया हुआ गिफ्ट पैक उठाया और ऊपर के कमरे की तरफ चल दी। इत्तेफाक से लाउंज खाली था। मैंने इनके कमरे के दरवाजे पे दस्तक दी। अंदर से आवाज आई, आ जाओ। मैं अंदर गई तो वो बेड पर टेक लगाए मोबाइल देख रहे थे। मुझे देखकर उन्होंने मोबाइल एक तरफ रख दिया। मैंने वो 70,000 रुपये और गिफ्ट पैक इनके बेड पर पटक दिया और इंतहाई सर्द लहजे में कहा, ये ले फखर साहब, ये वो 70,000 रुपये हैं जो मैंने अपनी तनख्वाह में जमा किए हैं, और ये रहा आपका गिफ्ट। इस डायरी में पूरा हिसाब लिखा है कि आपने बचपन से अब तक मुझ पर कितने लाख खर्च किए हैं। मैं आपकी पाई पाई सूद लौटा दूंगी। मुझे आपका कोई एहसान नहीं चाहिए, और हाँ, मेरे जहेज की आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। मैं अपनी नौकरी से अपना जहेज खुद बना सकती हूँ। फखर भाई के माथे पर गुस्से के बल पड़ गए। वो बेड से उठ खड़े हुए और इनकी आंखों में वही पुराना जलाल था जो 3 साल पहले मैंने देखा था। फखर भाई गुस्से से मेरी तरफ बढ़े और बोले, हानिया, ये क्या बदतमीजी है? उठाओ ये पैसे और अपने कमरे में जाओ, और खबरदार जो आइंदा मुझसे पैसों का हिसाब करने की कोशिश की। मैंने भी अपनी ठोड़ी ऊंची करके कहा, मैं बदतमीज ही भली, लेकिन मैं किसी का एहसान अपने सर पर नहीं रख सकती। आप कजन हैं, कजन बनकर रहें, मेरा बाप बनने की कोशिश ना करें। उन्होंने गुस्से से चकरा कर कहा, मुझे सीधा करना आता है हानिया? मैंने तंजिया मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, जी हाँ, मुझे मालूम है। हाथ उठाने की काफी अच्छी प्रैक्टिस है आपको। मेरी इस बात पर उन्होंने शर्मिंदगी से नजरें चुरा ली, क्योंकि वो जानते थे 3 साल पहले मारा गया थप्पड़ आज भी हमारे बीच एक दीवार बनकर खड़ा था। उन्होंने गहरा सांस लिया और कहा, अपना सामान उठाओ और चली जाओ यहाँ से, वरना मेरा गुस्सा तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। मैं वहां से पैर पटकते हुए अपने कमरे में आ गई। अगली सुबह जब मैं ऑफिस जाने के लिए बाहर निकली तो फखर भाई अपनी नई गाड़ी में बाहर निकल रहे थे। लंदन से उन्होंने बहुत पैसा कमाया था और यहाँ आकर अपना फैक्ट्री छोटा सेटअप शुरू करने वाले थे। मुझे देखकर उन्होंने गाड़ी का शीशा नीचे किया और कहा, गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हें ऑफिस छोड़ देता हूँ, और मुझे ये भी देखना है तुम कहाँ जॉब करती हो। मैंने इनकार कर दिया, शुक्रिया, मैं बस में चली जाऊंगी। लेकिन वो गाड़ी से नीचे उतरे। गली खाली थी। उन्होंने गुस्से से मेरी कलाई पकड़ी और जबरदस्ती मुझे घसीटते हुए घर के अंदर ले गए। मैं चिल्लाती रह गई, लेकिन उन्होंने एक ना सुनी। अंदर जाकर उन्होंने अम्मी को पुकारा और कहा, चाची, आज के बाद खानिया ऑफिस नहीं जाएगी, ये नौकरी नहीं करेगी। मैंने तब कर कहा, अम्मी देखें, ये कौन होते हैं मेरी जिंदगी के फैसले करने वाले। मेरी इस बदतमीजी पर मेरी अपनी अम्मी ने मेरे मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ दे मारा और कहा, बहुत जुबान चलने लगी है तेरी फखर के आगे। मैं रोती हुई अपने कमरे में चली गई और खुद को बंद कर लिया। क्यों सब मुझ पे अपना हक जमाना चाहते थे। शाम के वक्त ताई अम्मा मेरे कमरे में खाना लेकर आई। उन्होंने मुझे अपने हाथ से नवाले खिलाए और अम्मी को भी डांटा कि बच्ची पर हाथ क्यों उठाया। ताई अम्मा के प्यार ने मेरा दिल पिघला दिया। मैंने इनके गले लगकर फखर भाई की खूब बुराई की। उन्होंने मुझे अपने हाथ से नवाले खिलाए और अम्मी को भी डांटा कि बच्ची पर हाथ क्यों उठाया। ताई अम्मा के प्यार ने मेरा दिल पिघला दिया। मैंने इनके गले लगकर फखर भाई की खूब बुराई की। उन्होंने मुझे अपने हाथ से नवाले खिलाए और अम्मी को भी डांटा कि बच्ची पर हाथ क्यों उठाया। ताई अम्मा के प्यार ने मेरा दिल पिघला दिया। मैंने इनके गले लगकर फखर भाई की खूब बुराई की।
और उन्होंने हंसकर मेरी बातें सुनी। कुछ दिन बाद जब मैं ऑफिस के आखिरी चंद दिन पूरे कर रही थी तो ताई अम्मा ने अचानक मुझे गले लगा लिया और खुशी से रोते हुए बोली, हानिया, मैं तो फखर की शादी के लिए इतनी परेशान थी, लेकिन उसने मिनटों में मेरा मसला हल कर दिया। उसने मुझसे कहा है कि वो तुमसे शादी करना चाहता है। अब तुम हमेशा के लिए मेरे घर आ जाओगी। ये सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। मैंने कहा, ताई अम्मा, आपका दिमाग तो ठीक है, मुझे इनसे शादी नहीं करनी। शर्म नहीं आती उन्हें? मुझसे कितने साल बड़े हैं और मेरे बारे में ऐसी सोच रखते हैं। मेरी इस बात पर ताई अम्मा दिल बर्दाश्ता होकर ऊपर चली गई और अम्मी ने मुझे फिर से डांटा। अगले दिन जब मैं ऑफिस से बाहर निकली तो फखर भाई गाड़ी लिए बाहर खड़े थे। उन्होंने कहा, अगले ही दिन जब मैं ऑफिस से बाहर निकली तो फखर भाई गाड़ी लिए बाहर खड़े थे। उन्होंने कहा, गाड़ी में बैठो, मुझे बात करनी है तुमसे। मैंने गाड़ी में बैठते ही कहा, मुझे आपसे शादी नहीं करनी फखर साहब, मुझे इनकार का हक हासिल है, जैसे 3 साल पहले आपको हासिल था। उन्होंने पहली बार नम आंखों से मेरी तरफ देखा और इंतहाई धीमे और टूटे हुए लहजे में कहा, हानिया, मैं यहाँ से गया तो समझ गई। हानिया, मैं यहाँ से गया तो समझ गया कि ये आदत नहीं थी, शायद मोहब्बत ही थी। कई बार तुमसे बात करने की कोशिश की, लेकिन तुम करती ही नहीं थी। बहुत चाहता था तुम्हारी आवाज सुनूं। जब तुम्हें वापस आकर देखा तो तुम काफी संजीदा हो चुकी थी, काफी बदल चुकी थी। तुम्हारा ये बदलाव मुझे अच्छा लगा था, लेकिन तुम्हारी बेरुखी ने मुझे अंदर से तड़पाना शुरू कर दिया। मुझे लगता था कि रिश्ता भेजूंगा तो तुम्हारी नाराजगी खत्म हो जाएगी। उसकी बात ने मेरी अना को झुंझला दिया। मुझे लगा कि वो ये साबित करना चाहते हैं कि मेरा कोई नहीं है। मैंने तहस में आकर अगले दिन ऑफिस में अपने बॉस से बात कर ली। एक 50-55 साल का शादीशुदा शख्स था जिसकी 3 बेटियां थीं, लेकिन वो लड़कियों से दिल लगी करने के आदी थे। जब मैंने इनसे कहा कि वो मेरे घर रिश्ता लेकर आए तो वो खुशी खुशी तैयार हो गए। अगले ही दिन मेरा बुरा बॉस मेरे ड्राइंग रूम में बैठा था। यहाँ अम्मी, ताई अम्मा और फखर भाई मौजूद थे। जैसे ही उसने हानिया का रिश्ता मांगा और कहा कि इसमें हानिया की रजामंदी है, तो फखर भाई के तन बदन में आग लग गई। उन्होंने बॉस को गिरेबान से पकड़ा और गुस्से से बोले, उम्र देखी है तुमने अपनी? उठो और दफा हो जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मैं तुम्हें जलील करके अगली गली में फेंक दूं। मैं ड्राइंग रूम में आई और चिल्लाई, आप क्यों निकाल रहे हैं? मैं शादी करना चाहती हूँ इनसे। फखर भाई ने बहुत जोर से मुझ पे चीखा, इतनी जोर का थप्पड़ मारूंगा कि तुम्हारा दिमाग दुरुस्त हो जाएगा। चलो अपने कमरे में जाओ। इनका वो खौफनाक रूप देखकर मेरा बॉस भी भाग गया और मैं भी डरकर अपने कमरे में आ गई। कुछ देर के बाद फखर भाई मेरे कमरे में दाखिल हुए और दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। वो गजबनाक लग रहे थे। उन्होंने कहा, खड़ी हो जाओ। मैं बेड से खड़ी हो गई और बोले, क्या था ये सब? क्या तलाश किया तुमने? अपने लिए अक्ल है या जो थी वो भी जा चुकी है? मैं रोने लगी तो उन्होंने गहरा सांस लिया। हानिया, मैं कल तुमसे निकाह कर रहा हूँ। मुझे कोई जहेज नहीं चाहिए। मैं शादी धूमधाम से करना चाहता था, लेकिन तुम्हारी इन हरकतों की वजह से मैं मजीद कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। और याद रखना, कल तुमने अगर मौलाना साहब के सामने कोई ड्रामा किया तो तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगी। अगले दिन घर में सादगी से निकाह का एहतमाम किया गया। फिजा ने मुझे दुल्हन का जोड़ा पहनाया। जब मौलाना साहब मेरे पास एजाबे कबूल के लिए आए तो फखर भाई की इस धमकी के आगे मेरी सारी अना ढेर हो चुकी थी। मैंने रोते रोते कबूल कह दिया। रुखसती के बाद जब फखर भाई कमरे में आए और दरवाजा बंद करके मेरे सामने बैठ गए
तो मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। उन्होंने मेरा घूंघट उठाया और मेरे आंसू पोंछते हुए कहा, तुमने मुझे बहुत मायूस किया हानिया। मैं खामोश रही तो वो बोले, हाँ, मैंने तुम्हें 3 साल पहले थप्पड़ मारा था, लेकिन तुम इस वक्त फर्स्ट ईयर में थी, नादान थी, तुम्हारी वो उम्र पढ़ाई की थी, मोहब्बत के चक्रों की नहीं थी, और मेरे सर पे पूरे खानदान की जिम्मेदारी थी। अगर मैं तुम्हें उस वक्त थप्पड़ ना मारता तो तुम आज बीकॉम और आईटी ना कर पाती, बल्कि मेरे सपने आंखों में सजाए बैठी रहती। लेकिन जब मैं लंदन गया तो मुझे एहसास हुआ कि तुम मेरे लिए क्या हो। मैंने तुम्हें हर लम्हा वहाँ मिस किया, तुम्हारी आवाज सुनने को तरसता रहा। तुम मुझे सिर्फ तकलीफ देना चाहती थी, तुम्हें एहसास तक नहीं था कि इस तकलीफ से मैं तुमको खुद को कितनी तकलीफ दे रही हूँ। मैं अपने चेहरे को हाथों में छुपा कर फूट फूट कर रो रही थी, क्योंकि वो सच कह रहे थे। मैं फखर भाई को सजा देने के चक्कर में खुद को आग में झोंकने चली थी, लेकिन उन्होंने मुझे बचा लिया। फखर भाई ने मुस्कुरा कर मेरे हाथ अपने लबों से लगाए। अब रोकर अपना मेकअप खराब मत करो, पहले ही कोई खास अच्छी नहीं लग रही, अब काजल फैल गया तो बिल्कुल चुड़ैल लगोगी। मैंने तड़प कर इनके सीने पे हाथ मारा। हाँ, हूँ मैं चुड़ैल, बहुत बुरे हैं आप, मैं आपसे नफरत करती हूँ। उन्होंने हंसकर मुझे अपने सीने से लगा लिया और बोले, जैसा भी हूँ अब सिर्फ तुम्हारा हूँ हानिया। उस रात हमारे दिलों की सारी करवाहटें और दूरियां मिट गईं, और अगली सुबह जब मैं नाश्ते की मेज पर आई तो मेरी मुस्कुराहट रुकने का नाम नहीं ले रही थी, जिस पर अरहम ने हमेशा की तरह छेड़ते हुए कहा, 3 साल की नाराजगी एक ही रात में खत्म। फखर भाई ने ऐसा क्या जादू कर दिया कि तुम्हारे सरे हुए चेहरे से मुस्कान ही गायब नहीं हो रही। और मैंने शर्मा कर फखर भाई की तरफ देखा, जिनकी नजरें मुझ पर ही टिकी हुई थीं। जी तो मोजी सामीन, ये थी आज की खूबसूरत कहानी। यकीनन आपको आज की कहानी अच्छी लगी होगी। इसके साथ ही किताब कहानी के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत जल्द दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।